everyone, so in this video we will continue our discussion with the topic disease of lymphoid system. So without any further ado, let's get started. After that, we will discuss about the circulatory disturbance in the lymph node and it is hemorrhages. The etiology says that hemorrhages are seen in the lymph node in the following conditions: local trauma, passive venous congestion, severe infectious disease, hemorrhagic diathesis. Coming to the gross pathology, the lymph node shows the petechiae, focal or diffuse reddened area, that is hemorrhages. Hemal lymph node should not be confused with the hemorrhagic lesions. Coming to the histopathology, the erythrocyte may replace the normal lymphocytes. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस इन द लिम्फ नोड एंड इट इज हेमरेज. सो सबसे पहले बात आती है हेमरेज क्या होता है. इट इज द लॉस ऑफ ब्लड. सो सिंपली लिम्फ नोड्स में सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस की वजह से ब्लड का लॉस होता है, जिसकी वजह से वहां पे हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाती है. Now coming to the etiology or the causative agent, it can be local trauma, passive venous congestion, severe infectious disease, hemorrhagic diathesis. अगर कोई एनिमल किसी लोकल ट्रॉमा से सफर कर रहा है, किसी वीनस कंजेशन से सफर कर रहा है, वहाँ पे कोई सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज है या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो इन केस में क्या होगा, वहाँ पे ब्लड का लॉस होगा इन द लिम्फ नोड और वहाँ पे हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाएगी. ठीक है. Now after that we will discuss about the gross pathology. So simply the lymph nodes show the petechiae, focal, diffuse red areas. Basically क्या है, अगर आप lymph node की ग्रॉस स्टडी करोगे जहाँ पे हेमरेज है, तो वहाँ पे आपको रेड पिन पॉइंट साइज के एरियाज देखने के लिए मिलेंगे, दैट आर हेमरेजिक लीशंस. ठीक है. आपको एक बात ध्यान में रखनी है दैट यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन द हीमल लिम्फ नोड एंड द हेमरेजिक लीशन. जब आप किसी हेमरेजिक लिम्फ नोड की स्टडी कर रहे हो तो वहां पे आपको हेमरेजिक लीशंस और हीमल लिम्फ नोड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों के साइड जो होते हैं कंपैरेटिवली सेम से होते हैं. दे ऑल विल बी पिन पॉइंट. ठीक है. आफ्टर दैट कमिंग टू द हिस्टोपैथोलॉजी, द एरिथ्रोसाइट में रिप्लेस द नॉर्मल लिम्फोसाइट. मैंने आपको बताया था कि लिम्फ नोड का मेन काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट. इसका मतलब क्या है, लिम्फ नोड्स में आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, लेकिन ड्यू टू द हेमरेज वहां पे क्या है, जो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय द एरिथ्रोसाइट्स और द आरबीसी. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the lymphadenitis, that is the inflammation of the lymph node. It is non-specific, local or general. The irritant that cause the non-specific lymphadenitis can be irritant chemical, soluble toxin from the trauma and the burns, and it can be bacterial. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द लिम्फाडेंटाइटिस एंड इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फ नोड. लिम्फ नोड की स्वेलिंग आपको ही हम क्या कहते हैं, लिम्फाडेंटाइटिस. अब ये जो लिम्फाडेंटाइटिस है ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है. Now we will discuss about the irritant or the causative agent behind the non-specific inflammation of the lymph node. Basically non-specific lymph inflammation के लिए कौन कौन से irritant और causative agent responsible होते हैं. It can be irritant chemical, soluble toxins from the trauma and the burns, and it can be bacterial in nature. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the type of the lymphadenitis. So simply on the basis of the nature of the exudate, the lymphadenitis can be acute serous lymphadenitis, hemorrhagic lymphadenitis, suppurative lymphadenitis and chronic lymphadenitis. ठीक है. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the types of the lymphadenitis on the basis of nature of exudate. तो अब बात आती है एक्सुडेट क्या होते हैं. तो इट इज द फ्लूइड दैट इज फिल्टर्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू द लीशंस एंड द इंजरी. आपके कभी भी चोट लग जाती होगी तो वहां पे आपने देखा होगा कभी कभी तो कोई फ्लूइड आता है, कभी कोई थिक लिक्विड आता है, कभी कोई पस फॉर्मेशन होती है, तो उसी को हम एक्सुडेट कहते हैं. ठीक है. उसी के नेचर के बेसिस पे अब हम लिम्फाडेंटाइटिस को क्लासिफाई करेंगे. सो इट कैन बी एक्यूट सीरस, हेमरेजिक, सुपरेटिव एंड क्रोनिक. ठीक है. So now moving on, we will first of all discuss about the acute serous lymphadenitis. Coming to the causative agent or the etiology, it is seen in the lymph node draining acutely infected or the inflamed area. In some septicemic cases or the disease, the lymph node throughout the body are affected. Example: anthrax, hemorrhagic septicemia, swine erysipelas and the hog cholera. Mesenteric nodes are affected by the absorption of the irritant from the gastrointestinal tract. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the acute serous lymphadenitis and first of all we will discuss about the etiology. So it is seen in the lymph node draining acutely infected area of the inflamed area.
बेसिकली क्या है, ये एक्यूट सीरस लिम्फाडेंटाइटिस आपको उन लिम्फ नोड्स में देखने के लिए मिलेगा जो कि ड्रेन करती हैं इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड एरियाज को. इट कैन बी सीन इन द सेप्टिसेमिक डिसीज वेयर द लिम्फ नोड थ्रू आउट द बॉडी आर अफेक्टेड, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, स्वाइन एरिसिपिलिस एंड द हॉक कोलेरा. बेसिकली क्या है, सेप्टिसेमिक डिजीज और सिस्टमिक इन्फेक्शन की कंडीशन में पूरी बॉडी के लिम्फ नोड जो हैं एक्यूट सीरस लिम्फाडेंटाइटिस से सफर करते हैं. फॉर एग्जांपल इट कैन बी सीन इन द केस ऑफ एंथ्रेक्स, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, स्वाइन एरिसिपिलिस एंड द हॉक कोलेरा. ठीक है. आफ्टर दैट mesenteric nodes are affected by the absorption of the irritants from the gastrointestinal tract. बेसिकली जो mesenteric nodes हैं वो भी एक्यूट सीरल लिम्फाडेंटाइटिस से सफर करती हैं बिकॉज ऑफ absorption of the irritants that are present in the GIT of the animal. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the gross pathology. So simply the affected lymph node is enlarged, moist and reddish. Coming to the histopathology, the affected lymph node shows the hyperemia and the oedema. The proliferation of the lymphatic parenchyma and the reticuloendothelial tissues can be seen. There will be the infiltration of the mononuclear cells and a few neutrophils in the lymph sinuses. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्रॉस पैथोलॉजी ऑफ द लिम्फ नोड इन द केस ऑफ द एक्यूट सीरस लिम्फाडेंटाइटिस. सो सिंपली द अफेक्टेड लिम्फ नोड इज enlarged, मॉइस्ट एंड रेडिश. देखो, अगर कोई भी लिम्फ नोड एक्यूट सीरस लिम्फाडेंटाइटिस से सफर कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो लिम्फ नोड है वो enlarged देखने के लिए मिलेगी, मॉइस्ट देखने के लिए मिलेगी एंड इट विल बी रेडिश. ठीक है. नाउ कमिंग टू द हिस्टोपैथोलॉजी, द अफेक्टेड लिम्फ नोड शोज द हाइपरमिया एंड द ओडिमा. जो भी अफेक्टेड लिम्फ नोड है, अगर आप उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो तो वहां पे आपको एक्सेस ब्लड सप्लाई देखने के लिए मिलेगी, दैट इज हाइपरमिया, और वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, दैट इज ओडिमा. There will be the proliferation of the lymphatic parenchyma and the reticuloendothelial cells. अब जो अफेक्टेड लिम्फ नोड है वहां पे जो रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यूज और सेल्स है, लिम्फेटिक पेरेनकाइमा है, यहाँ पे इनका प्रोलिफरेशन होगा. ठीक है. देयर विल बी द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड द न्यूट्रोफिल्स इन द लिम्फ साइनसेस. जो लिम्फ नोड अफेक्टेड है उनके साइनसेस में आपको मोनोन्यूक्लियर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. The next lymphadenitis is the hemorrhagic lymphadenitis. Coming to the etiology, the hemorrhagic lymphadenitis occur when there is a strong irritant than the serous variety. Examples: anthrax and theileriosis. Coming to the gross pathology, the cut section of the gland reveals the bloody fluid. Coming to the histopathology, microscopically the lymph node sinuses contain the large number of the erythrocytes. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the hemorrhagic lymphadenditis. So first of all, we will discuss about the causative agent. So simply it occurs when the strong irritant is present in the serous variety, for example anthrax and the filariasis. देखो, मैंने आपको बताया था कि जो lymphadenditis है इसका one of the causative agent होता है is the presence of irritants. ठीक है. तो हेमरेजिक लिम्फाडेंटाइटिस के केस में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इरिटेंट प्रेजेंट होगा कंपैरेटिवली टू द एक्यूट सीरस लिम्फाडेंटाइटिस. एग्जांपल के लिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हो लाइक एंथ्रेक्स एंड थैलेरियासिस. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रॉस पैथोलॉजी. सो सिंपली द कट सेक्शन ऑफ द ग्लैंड रिवील्स द ब्लडी फ्लूइड. बेसिकली आप क्या करोगे, किसी भी अफेक्टेड लिम्फ नोड को जब कट करोगे जहां पे हेमरेजिक लिम्फाडेंटाइटिस है तो वहां पे आपको क्या है, ब्लडी फ्लूइड देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. Coming to the histopathology, microscopically the lymph node sinuses contains the large number of the erythrocytes. Simply क्या है, hemorrhagic lymphadenditis में affected lymph node की जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो वहां पे क्या है, आपको erythrocytes देखने के लिए मिलेंगे in the sinuses apart from the lymphocytes. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the suppurative lymphadenitis. So simply the causative agent is the pyogenic organisms. For example, Streptococcus equi in the horses that develops the strangles, Corynebacterium ovis in the sheep that develops the caseous lymphadenitis. Talking about the gross pathology, the affected lymph node shows abscess. Talking about the histopathology, the lymph node in the affected area contain the liquefied necrotic material along with the infiltration of the leukocytes, especially the neutrophils. Several small purulent foci may be present which may coalesce to form the large abscess. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next type of the lymphadenitis and it is suppurative lymphadenitis. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं about the etiology. So simply the suppurative lymphadenitis is caused by the pyogenic organism like
Streptococcus equi in the horses that develop the strangles, Corynebacterium ovis in the sheep that develops the caseous lymphadenitis. देखो ये जो सुपरेटिव लिम्फाडेंटाइटिस है इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हो लाइक स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई कॉर्निबैक्टीरियम ओविस। ठीक है, कमिंग टू द ग्रॉस पैथोलॉजी, द अफेक्टेड लिम्फ नोड शोज द एब्सेस। देखो जो भी अफेक्टेड लिम्फ नोड होगी विद द सुपरेटिव लिम्फाडेंटाइटिस वहां पे आपको एब्सेस फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, पस फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, coming to the histopathology, the lymph node in the affected area contain the liquefied necrotic material along with the infiltration of the leukocyte, especially the neutrophils। देखो जो भी अफेक्टेड लिम्फ नोड होंगे विद द सुपरेटिव लिम्फाडेंटाइटिस और आप जब उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो वहां पे अफेक्टेड एरिया में आपको क्या है लिक्विफाइड नेक्रोटिक मटेरियल देखने के लिए मिलेगा जिसमें स्पेशली न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी द सेवरल स्मॉल पुरुलेंट फोकाई which may coalesce to form the large abscess। साथ ही साथ जो भी अफेक्टेड लिम्फ नोड होगी ना वहां पे आपको छोटे छोटे पर्टिकुलर पुरुलेंट फोकाई देखने के लिए मिलेंगे, पस रिलीजिंग रीजन्स देखने के लिए मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ कोलेस करके ज्वाइन करके एक लार्ज एब्सेस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, moving on, we will discuss about the chronic lymphadenitis. Talking about the etiology, the chronic lymphadenitis is seen in the John's disease. Talking about the gross pathology, the affected lymph nodes, especially the mesenteric lymph nodes, are large, hard, and dry. Talking about the histopathology, the affected lymph node shows the hyperplasia of the reticulum cells. Numerous endothelial cells are swollen, rounded, cast off, fallen into the lymph sinuses that are much distended. Macrophages become predominant cell. Fibrosis is also evident and reactive hyperplasia of the lymph node is also present. So देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे about the chronic lymphadenditis. So talking about the etiology, this can be seen in the John's disease. देखो जो भी एनिमल जॉन डिजीज से सफर करेंगे वहां पे आपको क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है ये जॉन डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, तो इट इज सिंपली द माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस। तो देखो जो भी एनिमल माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस से सफर करेंगे वहां पे जॉन डिजीज की कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसकी वजह से वहां पे क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, coming to the gross pathology, the affected lymph node, especially the mesenteric lymph nodes, are large, hard and dry। बेसिकली क्या है क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस के केस में जो भी अफेक्टेड लिम्फ नोड होती है स्पेशली द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड वो बड़ी हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी एंड दे विल बिकम ड्राई। ठीक है, सो देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजी इन द क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस। सो सिंपली द अफेक्टेड लिम्फ नोड्स शोज द हाइपरप्लेशिया ऑफ द रेटिकुलम सेल। जो भी अफेक्टेड लिम्फ नोड होंगे विद द क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस वहां पे आपको रेटिकुलम सेल्स का प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट numerous endothelial cells are swollen, rounded, cast off, fallen into the lymph sinus that are much distended and develop a sinus catara। बेसिकली क्या है अगर आप अफेक्टेड लिम्फ नोड्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो सफरिंग विद द क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस तो वहां पे जो एंडोथेलियल सेल्स है वो स्वेलन अप हो जाएंगे, दे विल गेट राउंडेड एंड देन दे विल कास्ट ऑफ एंड देन दे विल फॉल इनटू द लिम्फ साइनस जिसकी वजह से वहां पे डिस्टेंशन डेवलप हो जाएगा दैट इज स्वेलिंग ड्यू टू द प्रेशर एंड फाइनली डेवलप अ साइनस कैटरा। इसका मतलब क्या हुआ लिम्फ साइनस में ही अब पस फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, द मैक्रोफेजेस बिकम प्रीडोमिनेंट सेल। जो मैक्रोफेजेस सेल्स का काउंट है इन द अफेक्टेड लिम्फ नोड वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट फाइब्रोसिस इज आल्सो एविडेंट। बेसिकली जो भी अफेक्टेड लिम्फ नोड है विद द क्रोनिक लिम्फाडेनिटिस वहां पे आपको फाइब्रोसिस काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। यू कैन ऑल्सो सी द रिएक्टिव हाइपरप्लेशिया ऑफ द लिम्फ नोड। बेसिकली क्या है रिएक्टिव हाइपरप्लेशिया आपको देखने के लिए मिलेगी ऑफ द अफेक्टेड लिम्फ नोड दैट इज द रिवर्सिबल enlargement in the size। ठीक है, so now moving on we will discuss about the neoplasm। First of all we will discuss about the primary tumors। So simply the primary benign tumors of the lymph nodes are not common। Primary malignant neoplasm, it means lymphosarcoma is common। Coming to the secondary tumors, the common tumors involving the lymph nodes are the carcinoma and the malignant melanoma and occasionally sarcoma is also seen। सो देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नियोप्लाज्म ऑफ द लिम्फ नोड। तो सबसे पहले बात आती है कि नियोप्लाज्म क्या होता है, तो इट इज द एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड दैट विल डेवलप इनटू द ट्यूमर और द कैंसरस मास। सिंपली क्या है लिम्फ नोड के सेल्स का एबनॉर्मल डिवीजन होता है जिसकी वजह से वो ट्यूमरस और कैंसरस मास में डेवलप हो जाते हैं।
देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर एंड द सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, अब बात आती है प्राइमरी ट्यूमर क्या होते हैं और सेकेंडरी ट्यूमर्स क्या होते हैं। तो मान लो किसी पर्टिकुलर सेल्स का डिवीजन एक रीजन में शुरू हुआ एंड देन दे डेवलप इनटू द कैंसरस मास, तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे जो भी डिवाइडिंग सेल्स थे वो मेटास्टेसाइज करके किसी और रीजन में चले गए एंड देन दे स्टार्ट डिवाइडिंग, तो यहाँ पे जो कैंसरस मास और ट्यूमर डेवलप होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, सो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी ट्यूमर। सो सिंपली द प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर ऑफ द lymph node आर नॉट कॉमन, बट द प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर इट मींस लिम्फोसार्कोमा इज कॉमन। बेसिकली lymph nodes में आपको प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर्स अक्सर देखने के लिए नहीं मिलते, दे आर वेरी रेयर, बट lymph node के केस में आपको प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने के लिए आसानी से मिल जाते हैं एंड द प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द lymph node इज द लिम्फोसार्कोमा। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकेंडरी ट्यूमर। सो सिंपली कॉमन ट्यूमर्स इन्वॉल्विंग द lymph nodes are carcinoma and malignant melanoma and occasionally sarcoma is also seen। बेसिकली क्या है, lymph nodes में आपको कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा आसानी से देखने के लिए मिल जाता है, कभी कभी आपको सार्कोमा भी देखने के लिए मिल सकता है, विच इज अ सेकेंडरी ट्यूमर ऑफ द lymph node। ठीक है, with this we have completed the topic, the disease of the lymphoid system. I hope you understand it well. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.